Assalamu alaikum, dear students. Here is Professor Amna Ilyas with a new lecture of English Intermediate Part 1. Here in this lecture, you will learn how to prepare your compulsory English paper for the final exams. Moreover, you learn the important or the significant areas of your book that you should not have to miss while preparing for the paper. Coming to the point, we'll first discuss the marking scheme of your paper. As you know that you have to study two books, to read two books, book 1, book 3, and the second section is section B. Dear students, the important thing that you must know there is that you have to secure 70 marks out of the book 1 and book 3. And here is the marking scheme given. Number 1 is the short question. The major portion of your question paper consists of short questions, and section A, that is from question number 2, that is from the short stories. You have to attempt 6 short questions for 12 marks, and from plays you have to attempt 5 questions for 10 marks, and from poems you have to attempt 4 questions for 8 marks. Second major portion is the translation passage, that you are provided with an passage with a passage paragraph taken from your book, and you have to translate into Urdu. It will secure 15 marks for you. Next is also the punctuation from the short story book, book 1. It carries 5 marks, and stanza also carries 5 marks, that is from book 3. And moreover, the objective part, we have two portions of the English A or the paper A, that is of the synonym, and you have to secure 10 marks from the objective paper, and the 5 marks MCQs are given to you to solve or to tick mark the correct option, that are information based. They are mostly provided or given to you from the last of the chapters. Second section is the section B. As you see, the section B consists of 30 marks, and these are not so easy to take. Number 1 is you have to attempt correction of verb, that is in your objective paper. Next is the moral story. You are provided with the 2 moral stories. You have to attempt 1 out of them with the correct moral and the title. It secure 10 marks for you. Next is application or the letter. You have a choice between them, and each carry 10 marks. And last one is the pair of words. You are provided with the 7 to 8 pair of words, and you have to attempt 5 out of them. Let's have a detailed view of your book 1. Dear students, do not skip any chapter fully. It means that your book 1 consists of the 15 chapters, 15 short stories. What you have to do, you have to prepare them fully, means you should know at least the theme of the stories. Do not skip any chapter fully, means ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक चैप्टर के ऐसा स्किप करें कि आपको उसकी थीम तक मालूम ना हो. सो आगे बढ़ते हैं. एंड योर स्कीम टू पेपर इज you have to secure 36 marks out of the book 1. 32 marks जो हैं वो आप कैसे secure करेंगे, और ये जो 4 marks हैं ये आपके objective के हैं. First of all, let's discuss here short questions. You have to attempt 6 short questions out of this section, and it secured 12 marks for you. For this thing, I have discussed here, you have to prepare lesson number 1, button. From the button to chapter number 11, lesson number 11, I have a dream. मीन्स अगर आप ये फर्स्ट 11 लेसन्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकता है. सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 15 मार्क्स का, जो आपके ट्रांसलेशन पैसेज हैं वो भी इन्हीं चैप्टर्स में से आपको ट्रांसलेशन पैसेज आ जाता है. पंक्चुएशन भी आपको इन्हीं शॉर्ट इन्हीं लेसन्स में से आ जाती है. और सिनोनिम्स जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, आपको 4 मार्क्स के सिनोनिम्स जो हैं वो बुक 1 से आते हैं.
अब आ जाते हैं बुक 3 का जो सेक्शन 1 है। बुक 3 में जो फर्स्ट सेक्शन है वो वन एक्ट प्लेस का है और इसमें 3 प्लेस हैं। प्ले 1 है हीट लाइटनिंग, प्ले 2 है विजिट टू प्लैनेट और जो थर्ड प्ले है एन ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो उसको अगर आप स्किप भी कर देंगे थर्ड वन को तो आप बड़ी इजीली जो है अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज यू सी यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि 10 मार्क्स के आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से और 3 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव होगी जो सिनोनिम की होगी। बकाया जो है आपको 2 एटलीस्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं, 2 और 1 एमसीक्यू जो इन्फो बेस्ड होते हैं। आपकी बुक 3 का जो सेकंड पोर्शन है वो पोएम्स पे है और जो पोएम का सेक्शन है वो आपको टोटल तकरीबन 16 मार्क्स जो है वो देता है यहाँ से। और वो कैसे देगा कि आपके 5 मार्क्स का स्टैंजा आ जाता है और आपके 8 मार्क्स के यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी 8 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और 5 मार्क्स का आपका स्टैंजा आ जाता है और एमसीक्यूज आपको 3 मार्क्स आते हैं। तकरीबन 16 मार्क्स आपको यहाँ से सिक्योर करने होते हैं। यहाँ आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी हैं। द रेन है, नाइट मिल है, लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज, द चेरी नाउ, टाइम्स, द होलो मैन, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, सिंधी वुमन, ऑस्मैंडियस, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आप बड़ी आसानी से स्टैंजा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। Coming to the section B of your paper, as you see that this portion will carry 30 marks in total. और ये 30 मार्क्स जो आप कैसे सिक्योर करेंगे कि पहली बात तो आप ये देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन लेटर में चॉइस है, तो आई सजेस्ट के बजाय इसके आप दोनों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करें, लेटर भी प्रिपेयर करें और एप्लीकेशन भी प्रिपेयर करें। उससे बेहतर है कि आप एप्लीकेशन लेटर में से किसी एक को चूज़ कर लें एंड प्रिपेयर देम फुली। नेक्स्ट इज द मॉरल स्टोरी। यू आर प्रोवाइडेड विद द 2 मॉरल स्टोरीज एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ देम विद द करेक्ट मॉरल एंड द टाइटल। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो पेयर ऑफ वर्ड्स की है। यू आर प्रोवाइडेड विद द 7 और द 8 पेयर ऑफ वर्ड्स, यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 5 आउट ऑफ देम। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो वर्ब करेक्शन आती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पास पेपर्स उठा लें और उनकी उसमें से आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं वही आपको नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस है, तो आप किसी एक को फुली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यह मैंने आपको कुछ एग्जाम्पलरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दी हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ी कंसेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस की है। ये एक ही एप्लीकेशन है, इसको डिफरेंट नेम से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। सेकेंड एप्लीकेशन जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द स्कॉलरशिप। नंबर 3 जो है वो चेंज ऑफ सब्जेक्ट की है। नंबर 4 लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स है, यानी आप सिक लीव है लेकिन आप मेडिकल ग्राउंड्स यानी उसकी मेंशन करेंगे कि आपकी कोई सीरियस डिजीज़ है, कोई सीवियर डिजीज़ है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं और उसकी जो है वो आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट अपॉलॉजी फॉर मिसकंडक्ट और मिसबिहेव है, यानी आपने क्लास में मिसबिहेव किया है टीचर के साथ या आपने स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया है एंड यू आर फाइन फॉर दिस। तो आप उसके लिए अपॉलॉजी लिखेंगे या आपको एक्सपेल कर दिया गया है तो आप उसमें आप अपॉलॉजी लिखने के साथ साथ जो आपको फ़ाइन किया गया है उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं इसी एक एप्लीकेशन में कि आपका फ़ाइन माफ़ कर दिया जाए और आपको दोबारा से रीएडमिट कर लिया जाए कॉलेज में। तो इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि लास्ट 3 जो एप्लीकेशंस हैं ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक हो सकती हैं अगर आप इनको करना चाहें। अदरवाइज अगर आप इनको सेपरेटली भी प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लें विदाउट एनी मिस्टेक, तो ये यकीनन आपको अच्छे नंबर दे सकती हैं। मॉरल स्टोरीज़ की जब बात आती है आपको 10 नंबर यहाँ से सिक्योर करने हैं और आपको 2 की चॉइस दी होती है। तो अगर आप ये जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ मैंने दी हैं साथ में इनके टाइटल भी लिखे हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर बड़ी आसानी से हल हो सकता है। नेम ऑफ द स्टोरीज आर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये इसका मॉरल है और स्टोरी का टाइटल जो है वुड कटर एंड हिज एक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि जब आप इसको अटैम्प्ट करते हैं स्टोरी को तो कभी भी आप इसका मॉरल जो है वो स्टोरी के टाइटल के तौर पर नहीं लिखते। टाइटल में हमेशा स्टोरी का नाम लिखा जाता है और मॉरल हमेशा स्टोरी के एंड पे लिखा जाता है और आपको तकरीबन 2 नंबर यहाँ से जो हैं वो इनका ठीक तरीके से पैटर्न लिखने के आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है यूनियन स्ट्रेंथ, अ फार्मर एंड हिज सन इज द टाइटल। अगली स्टोरी है हेस्ट मेक्स वेस्ट और द ग्रीड इज कर्स। इसमें आप अ हैन दैट लेड गोल्डन एग्स
तो ये अगर आप स्टोरी प्रिपेयर करते हैं तो दोनों मोरल लगते हैं, आपको इसके लिए अलग स्टोरी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रीडीज कर्स में आप स्टोरी देखते हैं तो बचपन से जो आप करते आ रहे हैं ग्रीडी डॉग वाली करते आ रहे हैं, तो आप अगर वो करते हैं तो हेस्ट मेक वेस्ट के लिए आपको अगेन अ हैंड दैट लेट गोल्डन है करनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि आप 2 स्टोरीज याद करें, आप एक याद कर लें लेकिन अच्छी याद कर लें। नेक्स्ट स्टोरी जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, और प्राइड हैथ द फॉल, ये भी 2 मोरल लगते हैं। स्टोरी एक ही है, अ हेयर एंड द टॉर्टोइस। नेक्स्ट देखते हैं डू गुड हैव गुड इज द मॉरल, और यू कैन पुट हियर द काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। टाइटल है स्टोरी अ डव एंड अ बी, तो अगर आप ये स्टोरी करते हैं तो आपको ये दोनों टाइटल इस पे लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो अक्सर पेपर में रिपीट होती है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स, आपने अ मैसेंजर एंड हिज हॉर्स स्टोरी करनी है। एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि आपने हरगिज़ ऐसी कोई स्टोरी याद नहीं करनी किसी भी टाइटल के लिए कि जो कि नॉन पॉपुलर हो, जो पॉपुलर ना हो। यानी ये ना हो आप कोई ऐसी स्टोरी लिख लें कि जिसका एग्जामिनर को खुद को ही ना पता हो कि ये स्टोरी भी है। तो पॉपुलर स्टोरीज जो हैं वो रिनाउंड स्टोरीज जो हैं वो हमेशा वो लिखा करें। सेकेंड लास्ट स्टोरी है ट्राई ट्राई अगेन, और इसका मॉरल ये भी लग सकता है वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो इसके लिए अ किंग एंड अ स्पाइडर ये वाली करेंगे। लास्ट स्टोरी है माइट इज राइट, अ लैम्ब एंड द वुल्फ। ठीक है, ये आपकी 8 स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आप तकरीबन आप 10 नंबर जो हैं वो सिक्योर कर लेंगे। आखिरी मरहला आपकी प्रिपरेशन का आता है, यानी आप ये सब चीज़ें जब आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं नंबर 1, नंबर 2 आप शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने बुक 1 और बुक 3 के आपने एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर लिए। नंबर 3 पे आप आ जाते हैं कि आपने एप्लीकेशन प्रिपेयर कर ली। नंबर 4 पे आप कहते हैं कि मैंने जो है वो मॉरल स्टोरी भी प्रिपेयर कर ली। तो पीछे जो चीज़ें बच जाती हैं, देखिए आपका पंक्चुएशन पैसेज और ट्रांसलेशन पैसेज वो भी बुक 1 से हो जाता है। तो ये सारा कुछ तो आपने बुक 1 से प्रिपेयर कर लिया। बारी आती है बाद में पेयर ऑफ वर्ड्स की, पंक्चुएशन की और वर्ब करेक्शन की। तो इसके लिए आपने पास्ट पेपर को फोकस करना है। इसके लिए तो आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज करते चले जाएंगे, अगर आप इकट्ठी करना चाहेंगे तो वो यकीनन आप उतना ज़्यादा उलझते चले जाएंगे। मेरी सजेशन ये होगी कि आप सिर्फ पास पेपर उठा लें और उसकी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो वर्ब करेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट वर्ब करेक्शन हैं जो पेपर में आती हैं, वो आपको मैं करवा सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगी कि आपने पेपर प्रिपेयर कर लिया, अगर आपने ये वो सारे सेक्शंस देख लिए जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो फिर आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में आप सब परेशान हैं बीइंग स्टूडेंट, तो उनका सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकेगा। जज़ाकल्लाह खैर बेटे, बेस्ट ऑफ लक। आप सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।